A very good morning to all of you. Welcome in your social science online classes. Okay, so I hope you all must be fine and safe at your homes, following all the instructions which will keep you safe from this pandemic COVID-19. Switching to your studies, in the previous classes we have started the first chapter of history, that was tracing changes through 1,000 years. Okay, in that we have seen that in about the chapter we have to cover 5 to 6 subtopics, and we have done one of the subtopics in our previous class, which was new and old terminologies, in which we saw that the old terms and the terms which were used previously, they meant something different, and now they mean something else. Like we have taken example of two terms, it was foreigner and Hindustan, and we have seen what they meant earlier and what they are what their meaning is at the present time. Okay, so today we'll switch forward to the second subtopic, which is historians and their sources. Historians are the persons who study about the history. Okay, now whenever a person, he or she studies something, so they need a source. Like if I'll say that you have to do this work in your copies, so you will need a source, because every time we can't frame out the things and write it on our own. When we have to write the perfect things, we need the facts, the actual dates, the actual things which happened at that time. So these historians, they usually needed the sources through which they could write about the histories. Okay, so what these sources were. So in your books, open to page number 4, this one. Here you will get everything. One thing more before proceeding further, I would like to say that don't get panicked that ma'am is writing on the board in a different pattern. Like whatever I am writing on the board, all these things are given in your book. But in your book, they are in a paragraph form. But on the board, I usually write them in the point-wise form, so that it is easy for you to understand. Okay, because whenever we write the things in point-wise, they quickly strike in our mind that yes, these are the points which we can remember easily. Okay, so don't get panic. जो भी आपकी किताब में लिखा हुआ है, वही चीज मैं बोर्ड पे लिखती हूँ point-wise, and I make it you understand. Because reading each line in the book, it consumes a lot of time, which we usually don't have. Okay, so we will go in this point wise only. Okay, so open the books in front of you. If you have any problem while I'm explaining, you can go through your books also. So what are the sources to study the history? Sources क्या हैं? स्रोत जो होते हैं हिस्ट्री पढ़ने के, वो स्रोत क्या है? Historians still rely on coins, inscription, architecture and textual records. Okay, now just go back in your memories. In class 6, you have studied that the historians, they also you have studied like the source was needed, and what were the sources? They were the manuscripts, like the which were written on the leaves, the Bhojpatra leaves, and then on the coins, like coins जो हुआ करते थे उस पे भी चीज़ें लिखी हुआ करती थी. Inscriptions जो पत्थरों पे लिखा जाता था, like it was very much famous in Ashoka time. Then the architectures जो buildings वगैरह बनती थी, textual records जो किताबें हुआ करती थी. तो here also in this time period also the historians, they still rely on these all things. अभी भी वो इन्हीं सब चीज़ों पे निर्भर थे. But in every time period, a small change or a drastic change, it comes. And as we are studying tracing changes, तो changes ही तो हम पढ़ रहे हैं. तो चीज़ें वही थी, but change आया था, it was like increased. What increased? The textual records. जो textual records थी, जो किताबें लिखी जाने लगी थी,
दोज इंक्रीज इन दिस पीरियड, इस टाइम पीरियड में जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे वो इंक्रीज हो गए. ओके, अब इंक्रीज हुए तो क्यों इंक्रीज हुए, व्हाट आर द रीजंस? द रीजंस वर पेपर वाज चीपर एंड अवेलेबल मोर वाइडली. जो पेपर था वो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, इट वाज चीपर, वो सस्ता हो गया, एंड इट वाज अवेलेबल मोर वाइडली, मतलब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हर जगह उपलब्ध होने लगा. तो whenever anything, like you can take example of anything, whenever anything it is cheaper and is available very widely, the people they use it in abundant quantity. So same thing was with the paper also. So अब लिखा तो जाने लगा पेपर्स पे, बट क्या लिखा जाने लगा, वी नीड टू गेट द थिंग्स ना, कि लिखा क्या जाने लगा. सो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, द पीपल दे वर वेरी मच रिलीजियस, बहुत वो धार्मिक हुआ करते थे. सो दे स्टार्टेड राइटिंग होली टेक्स्ट, मीन्स होली टेक्स्ट, धार्मिक किताबें लिखी जाने लगी ढेर सारी. ओके, देन क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे, जैसा कि क्लास 6 में आपने पढ़ा था, sorry not class 6, like in our previous classes we have studied Minaji Siraj. So these were the historians which used to write about the rulers. वो रूलर्स के बारे में, राजाओं के बारे में लिखना पसंद करते थे. So the chronicles of rulers that was written. Then teaching of saints, जो धर्म गुरु हुआ करते थे वो किताबें लिखते थे, वो अपने धर्म के बारे में, उसके बारे में किताबें लिखा करते थे. Then judicial records, जैसे किसी भी राजा के सभा में क्या नया रूल बना, किसी को क्या सजा दी गई, क्या चीज़ें नई इम्प्लीमेंट हुई उस दरबार में. सो दोज थिंग्स दे वर रिटन इन, लाइक दे वर टर्म्ड एज जुडिशियल रिकॉर्ड्स. वो सारी चीज़ें किताबों के रूप में लिखी जाने लगी, so that they can be kept safely and could be used in further time period. Then these all became source of history. और ये जो सारी चीज़ें थी, ये जो भी हमने पढ़ा, ये सारी चीज़ें, these all things became the source of history. ये सारे स्रोत बने हिस्ट्री के, इतिहास के. किसके लिए? इतिहासकारों, हिस्टोरियंस के लिए ये सारी चीज़ें सोर्स बनी, थ्रू विच दे कुड राइट इजिली. देन one question arises, but how it was circulated because no printing press. अब देखो, अब एक प्रॉब्लम कि चलो किताबें तो लिख दी, चलो एक इंसान ने, मान लो लाइक अ सिंगल पर्सन, ही और शी रोट वन बुक, एक किताब तो लिख दी गई. अभी क्या होता है, अब जैसे आप ये जो पढ़ रहे हो बुक्स, तो क्लास में कितने, वी कैन से दैट 50 स्टूडेंट्स आर देयर, सबके पास ये बुक है. अब अगर उस टाइम पीरियड की बात करें तो 50 बुक्स मतलब 50 लोगों ने उस बुक को लिखा. क्यों? क्योंकि तब प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी. अभी क्या होता है दैट वी कैन टाइप इट ऑन द कंप्यूटर and then we can take a print out of those things. but तब क्या था, तब तो ना प्रिंटिंग प्रेस थी ना कुछ भी था. तो तब क्या हुआ करता था, usually the things it was written from, usually not, it was only written from, like it was hand written, and फिर अब वो कैसे प्रिंट होती. so the scribes हुआ करते थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करती थी उनको क्या करते थे ये स्क्राइब्स, दे यूज टू कॉपी इट. जो ये स्क्राइब्स हुआ करते थे, द स्क्राइब्स, ये क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स को, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करती थी, हैंड रिटन जो बुक्स हुआ करती थी, ये स्क्राइब्स क्या करते थे, इसको कॉपी कर लेते थे. ओके, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स. सो अब ये मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी कहाँ जाती थी, जैसे अभी होता है कि आप कुछ भी अपना वर्क करते हो, देन यू कीप योर बुक्स एंड कॉपीज इन योर बैग्स और इन योर शेल्फ्स, अपनी जो जहाँ पे भी आप अपनी बुक्स कॉपीज रखते हो, ताकि वो वहाँ पे सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे. बट उस टाइम पे एट दैट टाइम, फॉर कीपिंग दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स, दिस टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स सेफ, वन प्लेस वॉज देयर विच वॉज टर्म्ड एज आर्चीव्स हुआ करती थी, जहाँ पे ये सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, सो दैट दे कुड बी सेफली, मीन्स ताकि से सेफली हम आगे भी फर्दर मोर स्टडी कर सकें. सो now we were discussing about the scribes. They were the excellent copywriters who used to copy these manuscripts by the hand. ये जो आर्चीव स्क्राइब्स होते थे, ये क्या करते थे, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को बाय हैंड कॉपी कर देते थे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करती थी. तो
जितनी भी बुक्स और बढ़ती थी, जैसे किसी वन पर्सन ने एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिख दी है, फिर ये स्क्राइब्स क्या करते थे कि उस मैन्यूस्क्रिप्ट को अपनी हैंड राइटिंग में कॉपी किया करते थे. नाउ अगेन वन प्रॉब्लम केम, दैट वाज लाइक व्हेनेवर यू यूज्ड टू टेक योर फ्रेंड्स कॉपी टू कॉपी समथिंग, लाइक you are absent in the school for few days and then you take your friends copies to complete your work. So there is a problem that sometimes you are not able to understand your friends writing. कभी कभी होता है ना कि आपको आपके फ्रेंड की राइटिंग समझ में नहीं आती है, तो आपको लगता है कि शायद यही चीज लिखा है, तो आप उसको उसी वे में लिख देते हो. That was the problem at that time also. Like the scribes, इन्हें भी समझ में नहीं आता था कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स में एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है. Like if you turn your pages, come to page number 6, here you can see यहाँ पे दो अलग अलग दिए हुए हैं राइटिंग्स. The first one is like the Persian and second one is the Arabic. So left में जो है that cursive writing is easy to read, but जो ये right में दी हुई है it is denser and more difficult. सो जस्ट थिंक, जब इस तरह की चीज़ें उन्हें कॉपी करनी होती थी स्क्राइब्स को, तो वो क्या करते थे, दे यूजुअली समटाइम्स गेट कन्फ्यूज एंड वॉट एवर दे थिंक कि हाँ ये चीज़ लिखी हो सकती है, दे यूज टू जस्ट राइट इन दैट वे. उन्हें लगता था कि हाँ यही चीज़ लिखी है, वो उसको वैसे ही लिख देते थे. सो दिस बिकेम अ कॉज ऑफ अ लाइक, फिर क्या होने लगा, जो रियल मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो रियल मैन्यूस्क्रिप्ट्स कुछ अलग हुआ करती थी और जो कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो अलग हो जाती थी. ओके, समझ में आ रहा है ना कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी हुआ करती थी वो कुछ और हो जाती थी, क्योंकि जो स्क्राइब्स उन्हें लिखते थे यूजुअली दे मेड सम ऑफ द स्मॉल चेंजेस एंड दीज चेंजेस, फिर जैसे मान लो एक स्क्राइब ने मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी किया, उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, फिर किसी और स्क्राइब ने उस स्क्राइब वाली मैन्यूस्क्रिप्ट को देखा और उससे लिखना चाहा तो उसने और चेंज कर दिया. तो कभी कभी इट वॉज अ प्रॉब्लम दैट द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट इट वॉज far away different from the copied manuscripts. Okay, so इतना समझ में आया कि historians कौन थे, उनके sources क्या थे, how they used to write, what were the methods which from which these things they were copied. Okay, so after this now we will study a new subtopic of this chapter, that is social and political group. Okay, so now the next subtopic which we are going to cover in this chapter is new social and political groups, page number 6 in your books. So new social and political groups, फिर क्या हुआ जब ये जो चेंजेस आए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा हिस्टोरियंस एंड सोर्सेज के बारे में कि उनको वो सोर्सेज कहाँ से, मतलब जो भी हिस्टोरियंस ने लिखा, जो भी चीज़ें फ्रॉम वेयर डू दे गेट दीज things, what were the sources, we have studied those things. Now we will look across the new social and political groups which came across in this time period. तो सोशल मीन्स होता है सामाजिक एंड पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक. सो जो भी नए सामाजिक चीज़ें बदलाव हुए जो भी उस टाइम पीरियड में, और जो भी पॉलिटिकल राजनीतिक बदलाव हुए, जो भी ग्रुप्स उस टाइम पे, अबाउट देम. इसमें हम पढ़ेंगे दैट इसमें ये इन्वेंशन हुआ, यहाँ पे है ना कि चेंजेस आए, तो सोशल ग्रुप्स था उसमें क्या क्या चेंजेस आए, जो सामाजिक एरिया था वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए. लाइक एग्जांपल वाज द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन. जो इरिगेशन प्रोसेस था उसमें क्या हुआ, पर्शियन व्हील का इन्वेंशन हुआ, सो दैट द इरिगेशन प्रोसेस could be made easier. Then spinning wheel in weaving, जो वीविंग हुआ करती थी, जो कपड़े बुने जाते थे, कपड़े बनते थे, उसके लिए स्पिनिंग व्हील जो चरखा था उसका डिस्कवरी हुआ. देन फिर फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, जो पहले लड़ाइयाँ हुआ करती थी वो यूजुअली तलवारों से हुआ करती थी, बट फिर क्या चेंजेस है सोशल में, फायर आर्म्स. एंड नॉट इवन इन दीज थिंग्स, फूड्स, बेवरेजेस, फूड्स तो पता है जो खाने पीने की चीज़ें होती है, एंड बेवरेजेस द थिंग्स विच आर लाइक ड्रिंकिंग, जो पीने वाली चीज़ें होती है लाइक टी, कॉफ़ी. और फूड्स में लाइक पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज़. तो ये सारी चीज़ें डिस्कवर हुई. ऐसा नहीं था कि अचानक से डिस्कवर हुई, चीज़ें थी बट इनकी डिस्कवरी की गई, ये पता नहीं था. जैसे पोटैटोज़ की डिस्कवरी अमेरिका में हुई, टी की चाइना में, कॉफ़ी की मिडिल ईस्ट में. तो इस तरह से इन चीज़ों की, खाने पीने की चीज़ों की भी डिस्कवरी उस टाइम पे हुई. एंड अलॉन्ग विद दिस नॉट ओनली लाइक दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें तो जो थी डिस्कवरी, दे वर फिजिकल, ये सारी फिजिकल चीज़ें थी. अलॉन्ग विद दिस द न्यू आइडियाज़ ऑल्सो केम इन द सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट हमने पढ़ा ना कि क्यों हम सब कॉन्टिनेंट वर्ड यूज़ करते हैं. तो इसी के साथ क्या हुआ कि
डिस्कवरी किसकी हुई? न्यू आइडियाज़ की हुई, मतलब नए नए तरीके के आइडियाज़ भी लोगों के दिमाग में आने लगे, विच वर यूजुअली वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग विच लेड टू the discoveries in the different areas. Then in the next para you can see it is written this was also a period of great mobility. ये जो time period था ये एक great mobility का time period था. Why? Because the people they usually moved for to find out the opportunity. लोग काम की तलाश में कि they move like कि उन्हें 4 पैसे कहीं पे ज़्यादा मिल जाएं, so they were moving in search of the opportunities. Then फिर क्या हुआ इन सब चीज़ों के बाद? अब जो एक न्यू चेंज आया दैट वाज जब लोग मूव करेंगे सो दे विल यूजुअली फॉर्म ग्रुप्स. जब मूवमेंट हो रहा है तो ग्रुप्स भी फॉर्म हो जाते हैं. सो वन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर राजपूत्स. जो एक ग्रुप एमर्ज हुआ जो इस टाइम पीरियड में इम्पॉर्टेंट हुआ दैट वाज राजपूत्स. और ये राजपूत वर्ड कहाँ से आया? Rajaputra. Rajaputra means son of the ruler. So from here this Rajaputra the word came as if Rajput. और ये राजपूत किन लोगों के लिए यूज हुआ? The term included rulers, लाइक रूलर्स के लिए तो था ही राजपूत वर्ड, और सोल्जर्स जो सोल्जर्स हुआ करते थे द क्षत्रियज, इनके लिए भी ये वर्ड राजपूत यूज़ हुआ. एंड द कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज़, और जो कमांडर्स आर्मीज़ में हुआ करते थे उनके लिए भी ये वर्ड यूज़ हुआ, द वर्ड राजपूत. ओके. देन ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 8 जो ऊपर फर्स्ट पैरा है उसमें देखिए इट इज़ रिटन ओवर देयर अ chivalric कोड ऑफ कंडक्ट. What is the meaning of chivalric? Chivalric means like it is an European concept. ये एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट होता है कि किसी के अंदर कुछ क्वालिटी होना, स्पेशल क्वालिटी होना. सो ये जो chivalric कोड ऑफ कंडक्ट था ये किसके लिए था? राजपूत्स के लिए था. एंड लाइक दे हैड देयर द क्वालिटीज़ विच दे यू हैड वॉज लाइक एक्सट्रीम वेलोर. एक्सट्रीम वेलोर मतलब होता है शौर्य, बहुत ज़्यादा शौर्य होना. एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर एट्रीब्यूटेड टू राजपूत्स. और ये सारी बातें कौन बताता था कि ये जो राजपूत्स हैं मतलब ये बहुत ज़्यादा शौर्य है इनके अंदर, ये बहुत ज़्यादा लॉयल हैं हर चीज़ के लिए. ये सारी चीज़ें जो पोएट्स हुआ करते थे उस समय के, जो कवि थे और जो ब्रेड्स थे, लाइक जो पंडित जी जो पूजा वगैरह कराते थे, वो ये सारी चीज़ें बताया करते थे कि ये जो राजपूत्स हैं दे आर लाइक वेरी मच, they are extreme valor, they have a great sense of loyalty and all these things. Okay. And now in the next para you will see that ki not only this group like the Rajputs only, not this, similarly other social groups such as Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms, Kshatriyas and Kayasth, not Kshatriya, it's Kayasth, also emerged as a politically important groups during this period. और इस टाइम पीरियड में ना सिर्फ ये राजपूत का जो ग्रुप था, और कौन से ग्रुप्स आए? सोशल ग्रुप्स लाइक मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स, कायस्थ. ओके. सो ये सब सोशली भी और पॉलिटिकली भी एज इम्पॉर्टेंट ग्रुप एमर्ज हुए. देन इन द सेकेंड पैरा यू विल सी, अब यहाँ पे जो हम सेकेंड पैरा में पढ़ेंगे इट इज़ अ टॉपिक ऑफ एमर्जेंस ऑफ जाति. जाति मतलब क्या होता है? कास्ट. द जाति वर्ड मीन्स कास्ट, जो कास्ट होता है. तो अब ये जो जातीज थी ये आई कहाँ से? सो इन द क्लास 6 प्रीवियसली यू हैव स्टडीड द कास्ट सिस्टम. जो कास्ट सिस्टम पढ़ा था कि 4 वर्ण जो होते हैं, द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड द शूद्र. तो ये 4 कास्ट सिस्टम हुआ करते थे. देन क्या हुआ, लाइक बहुत हम लोग जो ये टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं उस टाइम में यूजुअली द पीपल दे वर लाइक दे लेड द ट्राइब लाइफ. वो आदिवासियों की तरह रहा करते थे. सो लाइक मोर ऑफ द पीपल, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल दे यूजुअली लिव्ड इन द फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट में रहते थे. फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उन फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया. तो जब वो उन फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया तो जो वहाँ के जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, मतलब जो वहाँ के निवासी थे, ड्वेलर्स मीन्स निवासी, तो वहाँ के जो निवासी थे उनका जो हैबिटेट था वो चेंज हो गया. हैबिटेट मतलब जो एक जगह होती है कि जहाँ पे जैसे पोलर बियर का हैबिटेट होता है आइस, वो एक बर्फीली जगह पे रह सकता है. कैमल का जो हैबिटेट होता है वो डेजर्ट होता है. तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो वहाँ के निवासी थे उनका जो हैबिटेट था वो चेंज हो गया. फिर उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम द पेजेंट्स. वो लोग आके मतलब ज़मीन पे रहने लगे. ज़मीन पे पहले भी रहते थे, ज़मीन इन द सेंस कि अब वो जंगलों में नहीं, वो
एक खुली ज़मीन पे रहने लगे एंड दे स्टार्टेड एंड दे बिकेम पेजेंट्स, और वो क्या करने लगे, खेती करने लगे और वो किसान बन गए। जब वो किसान बन गए देन व्हाट हैपेंड, लाइक दे जब वो जंगलों से निकल के आ गए, वो धीरे धीरे रहने लगे, अच्छे से किसान बन गए, खेती करने लगे, तो धीरे धीरे वो सोसाइटी के साथ और घुल मिल गए, उनके साथ मिलजुल कर रहने लगे। देन द वन मोर ड्रास्टिक चेंज केम कि उनके बीच में इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस आने लगा। मतलब जो ज़्यादा पैसा कमाता था वो अमीर हो जाता था और जो कम पैसा कमाता था वो गरीब हो जाता था। सो दिस डिफरेंस स्टार्टेड बीइंग डेवलप्ड बिटवीन देम, ये डिफरेंस उनके बीच में आने लगा। देन और जितना ज़्यादा सोसाइटी में ये डिफ्रेंशिएशन होने लगा, जितना ज़्यादा सोसाइटी डाइवर्सिफाई होने लगा, उतना ही जाति और सब कास्ट वहाँ पे देखने को मिला। मतलब जितने ज़्यादा ये सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस आने लगे, उतना ही ज़्यादा ये जो सोसाइटी थी वो क्या होने लगी, डाइवर्सिफाई होने लगी। तो उतने ही ज़्यादा जो ये जाति सिस्टम था, ये सब कास्ट, ये बढ़ने लगा। और ये सारी चीज़ें किस पे रैंक करती थी, दीज जातीज दे वर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशंस, उनके बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशंस पे डिपेंड करती थी उनकी जातीज। देन इन द लास्ट पैरा यू विल फाइंड दैट जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। फिर क्या होने लगा, लाइक इफ़ देयर वाज अ विलेज, एक गाँव था, एंड वहाँ पे अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल्स रहते थे। सो दे वर डिवाइडेड इन दीज जातीज़। हर जाति का अपना खुद का अलग एक रूल्स और रेगुलेशंस होता था जो उन मेंबर्स को फॉलो करना पड़ता था। और ये सब चीज़ें कौन देखता था, लाइक हु यूज्ड टू गवर्न ऑल दीज थिंग्स, द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ दैट जाति, लाइक उस जाति का जो सबसे एल्डर पर्सन हुआ करता था, ही यूज्ड टू see all these things, that whether the rules and regulations are followed or not. And these things they were described in some areas में इसको किस वर्ड से डिस्क्राइब किया जाता था, जाति पंचायत। ओके, बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। मतलब ये नहीं था कि वो केवल अपने जो उनके जो जाति का जो एरिया का, जैसे एक जाति है उसने जो अपना रूल्स रेगुलेशंस बनाया है वही फॉलो करना है, वो तो फॉलो करना ही करना है, साथ में उस विलेज का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस था वो भी उन्हें साथ में फॉलो करना पड़ता था। सेवरल विलेजेस वर गवर्नड बाय अ चीफटेन, टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। सो हियर वी गॉट टू सी दैट सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, जो सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स में जो चेंजेस आए, जो सोशली जो फिजिकली चेंजेस आए, पर्शियन व्हील एंड देन द स्पिनिंग व्हील, देन द फायर आर्म्स, देन फूड्स एंड बिवरेजेस में जो चेंजेस मिले, देन द सोशल ग्रुप्स विच केम, द पॉलिटिकल ग्रुप्स विच केम, लाइक राजपूत, मराठा, सिख्स, अहोम्स, ये सारी चीज़ें आई। फिर राजपूत वर्ड कहाँ से आया, फिर उनको जो शावलरी कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया, कौन उनके बारे में जो कहते नहीं वीर गाथाएँ जो गाई जाती थी, ये सारी चीज़ें। फिर जातीज़ कहाँ से आई, वो किस पर बेस्ड हुई, तो ये सारी चीज़ें हमने इस सब टॉपिक में पढ़ी। नाउ in your next class, means the next online class, we will start from the region and empire. next class में हम region and empire सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।